Okay, a very good afternoon, everyone. Welcome again in our event break. बात करना जरूरी है, ब्रेक द साइलेंस, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए डिजाइन किया है, जिसमें हम आपके लिए अलग अलग तरीके की वर्कशॉप लेके आए हैं, जिससे कि आप घर बैठे बैठे ये समझ सके कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं। इसी क्रम में अभी तक बच्चों के बारे में बात हुई, पेरेंटिंग के बारे में बात हुई, कल हमने बुजुर्गों के बारे में बात की कि उनको घर पे रहते हुए उनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान दिया जा सकता है। आज बात की जाएगी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इन जनरल की क्या अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी में क्यों मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, क्यों फिजिकल हेल्थ की तरह ही आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। कहीं ना कहीं कोविड की सिचुएशन ने हम सबके मन में ये ये नीड, भले बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव रहा कि लोगों ने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया है। तो इसी के बारे में आज कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं Professor Dr. Shyamlata Juel ma'am, who is heading the Kanya Gurukul Department of Psychology in Haridwar. So thank you so much, ma'am, for joining us. We are privileged to have you as a guest of a speaker for today. And definitely all the audience, all the students associated with this session going to have insightful experience, gaining insightful experience from you, definitely. So I would like to have a brief introduction about ma'am. Ma'am is having 24 years teaching experience with a specialization in research methodology, personality development, clinical psychology, and applied psychology. There are almost more than 5 books which is edited by her, more than 55 research journals and national international international journals research paper presented in national international conferences, almost 75, almost 10 conference organized, and chairing in conference almost 20. There are 20 theses supervised by ma'am for the PhD thesis, almost 150 dissertations supervised, and many countries she presented herself as a keynote speaker like London, Australia, Singapore, Cape Town, South Africa, Paris, and Toronto. And she is also a member of editorial and advisory board of prestigious journal, almost 10. So there are so much to add in her profile, and definitely I'm no one to add here. So, ma'am, we are privileged to have you again with our stage. And please start, ma'am. Thank you, Shweta. You are good. You are doing a good job, very good job. Thank you, ma'am. Thank you so much. Even I'm feeling very conscious because definitely she is my guide. She's a No. mother to me. Even I'm Thank feeling you, very conscious today with you on this session. thank you, Yeah. Shweta. Thank you for. Actually, the topic is understanding mental health and mental illness. It is very important topic. We people don't know what is the proper meaning of mental health and how can they manage your mental health and mental illness, or what difference between mental illness, mental disorder, and mental well-being. So it is very important topic, or because 10th October is a mental health day, it is also very important. Actually, it is a balance. Mental health is a balance of cognition, emotion and behavior. इसमें तीनों चीजें का कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है. इंटेलिजेंस इसमें कॉग्निशन, कॉग्निशन का पार्ट, और कैसे हम थॉट प्रोसेस होता है, कैसे थॉट होता है, किस तरीके से थॉट प्रोसेस हम करते हैं, निगेटिव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, और इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है कि फीलिंग हमें किस तरीके की है, हमें जिस तरीके की फीलिंग होगी उसको हम कैसे अपने थॉट प्रोसेस में ले जाते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको बिहेवियर करते हैं. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू understand what is mental health. The successful performance of mental health and mental functioning. Basically, the successful performance of mental health, of mental functions, resulting in productive activities, fulfilling relationship with others, with other people, and the ability to adapt to change and cope with adversity is a mental health. Basically, your mental health influence how you basically how you think, you feel, and you behave in daily life. It is also affects your ability to cope with stress, overcome challenges, build relationship, and recover from life's setbacks and hardships.
अब what is the understanding of mental health is not like strong mental health and weak mental health and disturbing mental health. There is no any perfect criteria. Like strong mental health is not just the absence of mental health. अगर हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ है, उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसका तब किसी व्यक्ति का जो स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ होता है. बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्दी इज मच मोर देन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज rather than the absence of mental illness. Mental health refers to the presence of positive characteristics. It is very important. Then actually importance, WHO suggests that half the world's of population are affected by mental illness with an impact on their self-esteem, relationship and ability to function in everyday life. It is very important factor. All three factors are very important. First is when we manage first, then second automatically manage, and third one also, ability to function in everyday life is very important factor. Good mental health can improve one's life, means strong and good mental health can improve one's life. Poor mental health can prevent someone from living a normal life. Even you understand, even a normal life too, the prevent poor mental health is very, very dangerous. Mental health is not just an absence of mental disorder. It is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. अब मेंटल हेल्थ क्या है? हाउ अ पर्सन, कैसा व्यक्ति हो एक जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा हो, उसमें क्या हो? लुक्स एट वन सेल्फ. नंबर वन सबसे पहले क्या है? वो उसका लुक्स एट ओन सेल्फ. सबसे पहले वो अपने को लुक अच्छे से लुक आफ्टर करे, अंडरस्टैंड करे. लुक्स एट ओन सेल्फ, लुक्स एट ओन्स लाइफ, अपनी लाइफ के किस डायरेक्शन में ले जानी है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, एंड द अदर्स, और साथ साथ दूसरों की भी. थिंग्स, feels and acts. This is also a combination of cognition, emotion and acts related to behavior. It means balance of तीनों factor का balance is very important. Balance to some extent and balance to proportion. Proportion में balance होता है, perfection is not कहीं भी नहीं होती है. तो things में जो हम सोचते हैं, feels and acts when faced with life situation, इनमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है. जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वैसे तरीके से हम जैसा सोचे उसको फील करेंगे, और वैसा ही एक्ट में होता है, बिहेवियर में होता है. Evaluates those challenges and problems and explore choices, that is handling stress, relating to other people and making decision. Handling stress related to other people बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है दूसरों के बारे में, क्योंकि जितना भी हमारा हैंडलिंग स्ट्रेस रिलेटिंग टू अदर पीपल, स्ट्रेस जो है वो हमारा एनवायरमेंटल, बाहर से हम लोग ज़्यादातर फील करते हैं कि हमारा बाहर से जो है हमारा एनवायरमेंट जो है ठीक नहीं है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से हमें सब कुछ हो रहा है. तो उसी में हमारी फीलिंग और थॉट प्रोसेसेस हमारा डिस्टर्ब होता है. उसी में मेंटल हेल्थ को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, ड्यू टू स्ट्रेस मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल. अब फिजिकल हेल्थ में क्या है? आपका जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर अपने आप हो जाते हैं. जैसे डायबिटिक है, डायबिटिक में क्या हो रहा है? ड्यू टू स्ट्रेस डायबिटिक हो रहे हैं लोग आजकल ज़्यादातर, और ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, और बहुत सारी सो मेनी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल अफेक्ट थिंक अवर थिंक रिलेटेड टू अवर थिंकिंग और अफेक्ट्स अवर सोमेटिक ऑल्सो. and making decision, it is very important. And symptoms can include, अब हम symptoms इसमें किस किस को include कर सकते हैं? Thinking difficulties और problem focusing attention. Next क्या है? Extreme emotional. अब एक्सट्रीम इमोशनल पर क्या होता है? या तो इमोशन हाई में होते हैं, बहुत हाईज और लोज, या तो हम बिल्कुल फील नहीं करते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं किसी भी इमोशन के प्रति. इसमें क्या है कि दोनों पोल पे पहुंच जाते हैं, हाई एंड लो, बीच का बैलेंस का हमारा नहीं रहता है इमोशनल उसमें. और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होते हैं. तो इसमें अब
जब हमारा इतना सारा फंक्शन सारा डिस्टर्ब हो गया तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इसको सबको मैनेज नहीं करेंगे, आज हेल्थ अवेयरनेस की बात हुई, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात हुई, इट इज़ वेरी गुड, कम से कम इस टॉपिक को लोगों ने उठाया, इसी के थ्रू कम से कम लोगों में थोड़ी अवेयरनेस होगी, और हो सकता है कुछ आदतें लोग आज की उसमें करके डालें अपने अंदर इस तरीके की कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है इम्प्रूव कैसे करें और वो कंटिन्यू हो जाए। ड्यू टू अवेयरनेस ही ये हो सकता है कि ये कंटिन्यू हो जाए और वो आगे चल के उनको कंटिन्यू होके उसका लाभ मिल सकेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब many mental illness begin during childhood and persist into adolescence। बहुत सारी जो मेंटल इलनेसेस है वो क्या होता है, चाइल्डहुड में ही उनका वो जो है इलनेस होती है, शुरू हो जाती हैं और परसिस्ट रहती हैं लगातार एडोलेसेंट तक। सम ऑफ दीज इंक्लूड, उनमें कौन कौन सी हम करते हैं, जैसे ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये चाइल्डहुड में हो जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसे हैं जो चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं और एडोलेसेंट तक चलते हैं। बट सम इलनेसेस बिगिन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब कुछ मेंटल हेल्थ और कुछ इलनेसेस जो हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो एडोलेसेंट में, कुछ चाइल्डहुड से डेवलप होकर एडोलेसेंट में आती हैं, कुछ एडोलेसेंट में डेवलप हो जाती हैं, एडोलेसेंस एज में होती हैं। द इलनेस दैट मोस्ट ऑफन बिगिन ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड्स, कौन कौन सी ज्यादातर डेवलप होती हैं एडोलेसेंस पीरियड में, जिसमें मेजर डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक होते हैं ज्यादातर एडोलेसेंट, बहुत गुस्सा करते हैं, पैनिक होते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर ऑल्सो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एडिक्शन। एडिक्शन में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एडिक्शन में भी आजकल बच्चे बहुत जा रहे हैं एडोलेसेंट एज में, और ड्यू टू दैट रीजन मेंटल हेल्थ, ड्यू टू मेंटल हेल्थ इलनेस ऑफ मेंटल हेल्थ और डिसऑर्डर ऑफ मेंटल हेल्थ, और या पुअर मेंटल हेल्थ हम कहें तो ज्यादा बेटर होगा। एंड अब मेंटल हेल्थ इसमें स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल, जो मेंटल हेल्थ की स्टेट ऑफ वेलबींग है उसमें इंडिविजुअल का क्या होता है, रियलाइजेस हिज ओन एबिलिटीज, उसमें व्यक्ति अपनी एबिलिटी को रियलाइज करता है कि मेरे पास क्या क्या एबिलिटी है, किन एबिलिटीज के थ्रू मैं सोसाइटी में अपने को शो कर सकता हूँ, अपनी प्रेजेंस शो कर सकता हूँ, अपनी आइडेंटिटी कर सकता हूँ, और अपनी प्रॉब्लम को जो आती है उनको, अपनी प्रॉब्लम को अपनी एबिलिटी से किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो रियलाइजेस हिज ओन एबिलिटी, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। अब रोजाना की लाइफ में नॉर्मल स्ट्रेस आते हैं, अगर व्यक्ति की मेंटल हेल्थ अच्छी है, उसका तीनों चीजों का बैलेंस बेटर है, तो उसमें क्या होगा, रियलाइजेस हिज ओन एबिलिटीज के साथ साथ वो कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस, जो नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस आते हैं आगे आएंगे ही, बिना स्ट्रेस के तो होगी, कुछ चीजें स्ट्रेसफुल होती हैं, करता है, और कैन वर्क प्रोडक्टिवली। अब नेचुरली जब वो अपना जो है नॉर्मल लाइफ के चीजों को कोप अप करेगा स्ट्रेस को, तो जो उसका वर्क है वो प्रोडक्टिव होगा, मतलब वो अचीवमेंट करेगा और उसका वर्क जो है प्रोडक्टिव होगा, एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी। और वो सब मिलके कहाँ होते हैं, हम इस योग्य होते हैं जैसे हम कंट्रीब्यूशन अपना कम्युनिटी में करते हैं। अब जैसे अभी मान लो, अभी तुम श्वेता, तुम इसको ये सब प्रोग्राम कंडक्ट करा रही हो, तुम बहुत सारे कंडक्ट कराती हो, तो वो सब तुम क्या कर रही हो, कम्युनिटी के लिए कर रही हो, तो you are able to make a contribution to community, a very big contribution of yours. So this is very important for mental health awareness and understanding of mental health। Any disease of condition that affect way a person, किस फॉर्म में एनी डिजीज जो है, कंडीशन जो है कोई भी व्यक्ति को कैसे अफेक्ट करती है, उसकी सबसे पहले थिंकिंग को करती है, फीलिंग को करती है, और बिहेवियर को, एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स एंड सराउंडिंग्स, और उसके बाद वो दूसरों से रिलेट होने की एबिलिटी, और जिस सराउंडिंग में वो रहता है उसमें रिलेट करने की एबिलिटी भी उसकी पुअर हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका ये तीनों सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और ये तीनों सिस्टम जो है वो मिलके जो पर्सन है उसकी लाइफ को बहुत आगे डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव नहीं होने देता। अब द इम्पैक्ट ऑन मेंटल डिसऑर्डर। अब इम्पैक्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मेनली क्या होता है, अब मेनली मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ आर पब्लिक प्रॉब्लम, बट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, किसके ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट करती है, इंडिविजुअल के ऊपर, के बाद किस पे, फैमिली पे, और देन कम्युनिटी पे। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले इंडिविजुअल का फीलिंग
उसका उसका थॉट प्रोसेस, उसका फीलिंग, उसका बिहेव, उसका ये सब डिस्टर्ब होता है। उसके बाद में वो व्यक्ति जिस फैमिली में रहता है, उस फैमिली में वो सब डिस्टर्ब होने से जिस भी तरीके की वो एक्टिविटी करता है, वो एंग्री होता है, वो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो वो अदर टाइप की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, उसका जो फैमिली के और मेंबर है उन पर इफेक्ट पड़ता है। और फैमिली के और मेंबर पे इफेक्ट पड़ने से क्या होता है कि फैमिली के दूसरे मेंबर भी मेंटल इलनेस को जो है उसके उसके करीब करीब मेंटल हेल्थ उनकी भी खराब होनी शुरू हो जाती है। और ये सब मिलके क्या होता है, फैमिली, नेबर, फैमिली टू फैमिली रिलेशनशिप खराब होते होते क्या होता है, पूरी कम्युनिटी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। और पूरी कम्युनिटी जिसकी कि हम आज आप बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ के ऊपर क्यों आवश्यक है बात करना, तो ये कम्युनिटी की आज प्रॉब्लम है। आज पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब है। आप इतने सारे केसेस देखते हैं टीवी में, टेलीविजन में, ये रेप हो रहे हैं, ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं और उसके भी अलग अलग विभत्स तरीके आ रहे हैं। तो ये सब कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, ये सब ड्यू टू मेंटल हेल्थ। अगर हम इंडिविजुअल पे मेंटल हेल्थ पे पूरा फोकस करें, अभी कम्युनिटी में कर रहे हैं, कम्युनिटी में पर्सन टू पर्सन और फैमिली टू फैमिली मिलके पूरा कम्युनिटी और पूरा कंट्री इस तरह से होता है। तो अगर हम ये पूरी चेन में शुरुआत से ही, इनिशियल स्टेज से ही अगर हम इसी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दें और थोड़ा भी हम उसके ऊपर मेहनत करें, तो हम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और कम्युनिटी से ज़्यादा हम अपने लिए कर सकते हैं। इंडिविजुअल एंजॉय मूड में रह सकता है, खुश रह सकता है, हैप्पीली अपनी लाइफ को चला सकता है, अपनी पूरी एबिलिटी को पूरा यूज कर सकता है जिस एबिलिटी में उसके पास है, और वो उसको समझ ही नहीं पाता ड्यू टू पुअर मेंटल हेल्थ और ड्यू टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इसमें हेरिडिटी करता है सबसे पहले तो। अब हेरिडिटी में क्या है, ट्रेड्स ऑफ पेरेंट, जो पेरेंट्स की कुछ ट्रेड्स हैं एंसेस्टर की जो है वो ट्रांसमिटेड होती हैं चिल्ड्रन में। तो कुछ चीजें जीन्स के थ्रू आती हैं, जैसे इंटेलिजेंस है, और इसमें बहुत सारी चीजें इनहेरिटेड भी हैं, और इसमें पेरेंट्स के थ्रू, एंसेस्टर के थ्रू ट्रांसमिटेड होती हैं और थ्रू जीन्स में आती हैं। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये पेरेंट्स के इस तरीके से पासिंग थ्रू उनके बच्चों में इस तरीके से जाती हैं कुछ ट्रेड्स। इट शेप्स वंस पर्सनैलिटी, ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक शेप देती हैं और एंड मेक पीपल डिफरेंट। और बिहेवियर के थ्रू जो उनका शेप है, जो भी उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके थ्रू एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट हो जाता है। फिजिकल फैक्टर में हेल्दी बॉडी मेक्स अ हेल्दी माइंड, ये तो सभी जानते हैं। अनहेल्दी कंडीशन मेक्स लाइफ एबनॉर्मल। द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द इंडिविजुअल हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हिज और हर मेंटल हेल्थ। सोशल फैक्टर कैसे करते हैं? सोशल और कल्चरल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। सोशल और कल्चरल फैक्टर कैसे करते हैं? चिल्ड्रन डेवलप एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पैटर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। द होम बीइंग द फर्स्ट एनवायरनमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। जैसा मैंने आपको बताया, घर सबसे पहले शुरुआत होती है, घर से जो बिहेवियर एटीट्यूड पर्सन का मेंटल हेल्थ या किस तरीके से हम उसका रेयरिंग कर रहे हैं, हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। द कम्युनिटी इन विच द इंडिविजुअल बिलोंग्स में कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर मेंटल हेल्थ। कम्युनिटी भी जिसके जो है उसमें इंडिविजुअल कम्युनिटी में रहता है, कम्युनिटी के लिए करता है, कम्युनिटी से जिसको रिप्लाई मिलता है वो उसका मेंटल हेल्थ जो है वो सेटिस्फेक्शन और मेंटल हेल्थ को उसको इम्प्रूव होता है। सोशल, स्कूल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आल्सो हेल्प इन मॉडलिंग चिल्ड्रन पर्सनैलिटी। पर्सन की जो मोल्डिंग, जो चिल्ड्रन की जो पर्सनैलिटी है उसको मोल्ड करने में, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देने में हमारे स्कूल और हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि वहाँ सब हेल्दी और अच्छी बातें बच्चा सीखता है, बताई जाती हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेंटल हेल्थ में। हमें उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंटल हेल्थ की? मेंटली हेल्दी पर्सन की देखिए, मेंटली हेल्दी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कंफर्टेबल फील करता है, he feels comfortable about himself, he feels reasonably secure or adequate, he neither underestimate his own ability or not nor overestimate। ना वो अंडर एस्टिमेट करता है अपनी एबिलिटी को, ना वो ओवर एस्टिमेट करता है। वो रीजनेबली सिक्योर, इसका मतलब क्या है कि मेंटल हेल्थ जब पुअर होती है तो उसका इनसिक्योरिटी भी एक कारण है, तभी जब उसमें सिक्योरिटी होती है तो वो सिक्योर फील करता है। और मेंटली हेल्दी पर्सन फील्स राइट towards others। Right towards others means that is able to be interested in others and to love them। He is able to like and trust them। वो दूसरों को लव करता है, प्यार करता है, और वो उन पर ट्रस्ट भी करता है। जो मेंटली इल पर्सन है, जो जिनकी मेंटल हेल्थ पुअर है, वो दूसरे व्यक्तियों पे भरोसा कम करना और उनको उनके साथ में बहुत लविंग रिलेशनशिप नहीं बना पाते। उसका कारण ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें सोसाइटी से, कम्युनिटी से कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं
जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये सोचना होगा कि सोसाइटी में जो भी बातें होनी है, जो भी प्रॉब्लम्स होनी है, या जिस सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, कैसे होना है वो होता है, तो उसको हम परसीव कैसे करें। अब वो तो हो गया, उसकी वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को कितना खराब करें, और हम खराब करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। इसलिए बेटर है कि हम उसको, उसका परसेप्शन, उसकी थिंकिंग उसके प्रति, और उसके प्रति जो भी हम फील करें, एक्चुअल में हम उसको, हमें ट्रू फील करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, हम अपनी जगह होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेकंड पर्सन को हम कहें हमारी मेंटल हेल्थ इसलिए खराब हुई ड्यू टू दैट रीजन, प्रोजेक्शन करते हैं ज्यादातर। बट अगर हम एक्चुअल में देखें उसका भी प्रॉब्लम, तो हम उससे हम अपनी कम से कम मेंटल हेल्थ सिक्योर रख सकते हैं, जो हमें रखनी बहुत जरूरी है। A mentally healthy person able to meet the demands of life, जो लाइफ में डिमांड्स हैं, जो हमें काम करने चाहिए, मेंटली हेल्दी पीपल जो है वो सबको पूरी करता है। और वो फियर, एंगर और गिल्ट और लव, ये सारी की सारी चीजें जो है उसको जो है, ही इज नॉट बाउल्ड, वो उसको इकट्ठा नहीं करता कि हमने एंगर इकट्ठा कर लिया किसी के प्रति, हमने गिल्ट अपनी इकट्ठी कर ली बहुत ज्यादा, और हमने फियरफुल हो गए। ये सब चीजों को वो कलेक्ट नहीं करता कि हम उसको कलेक्ट करके और फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब वार्निंग सिग्नल पुअर मेंटल हेल्थ के सब क्या है? वार्निंग सिग्नल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आर यू ऑलवेज वरीज, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप हमेशा चिंता में रहते हो। आपने देखा है कभी कभी कोई व्यक्ति को आप पूछो कि उसको कोई प्रॉब्लम हुई, मान लो बीमारी हुई, तो आप बोलेंगे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, ऐसे ही सोच रहा था। लेकिन होता क्या है, वो जिस चीज से प्रॉब्लम को वो सफर कर रहे होते हैं, वो उसको लगातार उसको सोचते रहते हैं, लगातार वरीड रहते हैं, चुपचाप बैठे हुए उसको वरीड रहेंगे। अब चुपचाप में वो वाला फंक्शन जो तुम्हारा है कि बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसको मैं बताऊंगी अभी हमको किस तरीके से बात करने के माध्यम ढूंढने चाहिए। अब नेक्स्ट उसमें, आर यू अनेबल टू कंसंट्रेट बिकॉज अनरिकॉग्नाइज रीजंस। अब बिना अनरिकॉग्नाइज रीजन कोई रीजन नहीं है, और उसके बाद भी हम कंसंट्रेट करने में, किसी चीज पे कंसंट्रेट करने में अनेबल समझ रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो मोमेंटल है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर परमानेंट ऐसी आए तो आपकी मेंटल हेल्थ को, आप पुअर मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को बेटर करने की जरूरत है, आप उसको ऐसा समझना चाहिए। आर यू कंटिन्यूअसली अनहेल्दी विदाउट जस्टिफाइड कॉजेज। अब कोई जस्टिफाइड कॉजेज नहीं है, फिर भी आप हमेशा जो है कंटिन्यूअसली लगातार अपने आप को अनहेल्दी फील करते हैं विदाउट एनी जस्टिफाइड कॉजेज, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। डू यू लूज टेम्पर इजीली एंड ऑफन। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, इजीली एंड ऑफन। डू यू लूज टेम्पर, क्या हम जल्दी से टेम्पर लूज कर जाते हैं, आसानी से कर जाते हैं, और क्या प्राय करते हैं, हमेशा करते हैं? कभी कभी तो हर किसी का हो जाता है, उसमें इजीली हो चाहे उसमें बिना इजीली हो, कभी ऑफन कभी कभी तो होता है। लेकिन अगर आप हमेशा प्राय, अगर आप अक्सर जो है लूज टेम्पर करते हैं, तो इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो मैं हर बार अपना लूज टेम्पर क्यों कर रहा हूँ। देन आर यू ट्रबल बाई रेगुलर इंसोम्निया। अब इनकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति लगातार वो इंसोम्निया में, इंसोम्निया मतलब उसको नींद नहीं आएगी, लगातार वो इंसोम्निया में रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको लगेगा कि दिन में भी जो बातें हुई थी वो रात में घूमती रहेंगी उसके दिमाग में, वो उसको लगातार सोचता रहेगा, और नींद नहीं आएगी तो फिर उसके बाद जो फंक्शन, जो चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा, वो भी साइकोसोमेटिक और तरीके की बीमारी के रूप में डेवलप होंगी। अब डू यू हैव वाइड फ्लक्चुएशंस इन योर मूड। मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। अभी हमारा मूड है कुछ काम करने का, मान लीजिए हमने मूड बनाया कि हमको ये काम करना है, और पता चला कि किसी वजह से वो काम करना पॉसिबल नहीं है उस समय, तो हम क्या होता है कि कहते हैं व्यक्ति अब मेरा मूड नहीं है काम करने का। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हो सकता है ड्यू टू दैट रीजन ये पॉसिबल ना हो, चलो फिर से इसको काम को शुरुआत करते हैं, तो फ्लक्चुएशंस ऑफ मूड जो है उनके फटाफट, अभी मूड है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है, वो भी उनके मेंटल हेल्थ जब पुअर होती है तो बहुत ज्यादा होते हैं। और डू यू कंटिन्यूअली डिसलाइक टू बी विद पीपल। अब लगातार हम पीपल को डिसलाइक करते रहते हैं, हमें वो भी पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है। एंड अपसेट इफ रूटीन ऑफ योर लाइफ इज डिस्टर्ब। अगर आपका रूटीन लाइफ का डिस्टर्ब हो जाए तो आप अपसेट हो जाते हो। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे हम ये सीख जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमने कोई रूटीन सेट करा, हमारे रूटीन में कोई गेस्ट आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया, तो इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, तो हम ना वो कर पाते हैं ना अपने रूटीन कर पाते हैं। देखिए इसमें कितना लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी का कितना लॉस होता है। ना तो हम वो काम कर पाते हैं जिसकी वजह से रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, जो टास्क हमारे सामने आया है, और ना हम रूटीन वाला काम कर पाते हैं, तो हमारा पूरा लॉस हो गया।
तो इसलिए हमें क्या होना है इसमें कि हमें रूटीन, डेली जो रूटीन जो है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो लाइफ में, तो उससे हमें क्या होता है, एकदम से अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपसेट नहीं होना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे सीखना है, उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें व्यवहार करना है, सीखना है और काम करना है, और हैप्पी मूड में करना है, क्योंकि वो हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो प्लान हमने बनाया, क्योंकि वो मैनेज हम कर रहे हैं। Do your children consistently get on your nerves? अब क्या है, आपके जो चिल्ड्रन है वो कंसिस्टेंटली जो है वो क्या करते हैं कि ये फील करते हैं कि पेरेंट्स, कि बच्चे ये फील करते हैं कि नर्वस हैं, लगातार वो अपने आप को कंसिस्टेंटली नर्वस फील करते हैं कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, मेरा नर्वस, ये तो मैंने बहुत सुना है कि यंग बच्चों में भी कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं बहुत नर्वस हो रहे हैं। अब इतनी सी उम्र में हमको लगता है नर्वस होना, ये सब होना, इट इज नॉट अ गुड साइन, इस पे हमको काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस नेक्स्ट इसमें क्या है, अब आर यू ब्राउन ऑफ एंड कॉन्स्टेंटली बिटर। अब देखिए इसमें क्या है कि आप सेटिस्फाइड, क्या है ब्राउन ऑफ का मतलब, क्या है कि आप सेटिस्फाइड ही नहीं रहते हो, आर यू नॉट सेटिस्फाइड एंड कंसिस्टेंटली बिटर। आप लगातार जो है एक खराब सिचुएशन में लगता है कि हम रह रहे हैं, कभी अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी आप ये नहीं सोचते कि ये सिचुएशन मेरे लिए पॉजिटिव है या इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। जिसमें आप घुसोगे आपको लगेगा नहीं नहीं, इट इज नॉट फिट फॉर मी, या आई एम नॉट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट। आपको कुछ भी लगे लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे इसमें। और आर यू अफ्रेड विदाउट रियल रीजन कॉज, ये तो बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि विदाउट एनी कॉज क्या करते हैं, अफ्रेड रहते हैं। बच्चों को स्कूल भेज दिया, कोई कारण नहीं है, वो सोचेंगे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, तो वो सारी इलनेस, सारी बीमारियों की तरफ में सारा का सारा सोच डेवलप हो जाता है, वो बहुत धीरे धीरे वो एग्जैगरेट कर जाता है। आर यू ऑलवेज राइट एंड अदर पर्सन ऑलवेज रैंक, ये सबसे बड़ी है। अब क्या है, मेंटल हेल्थ जिन लोगों की पुअर होती है, ऐसा बोलेंगे, उनके साथ क्या होता है, वो सबसे पहले तो वो ये मानते हैं कि हम ही सही हैं, दूसरा व्यक्ति हमेशा, सेकंड पर्सन या दूसरा व्यक्ति गलत है, रॉन्ग है, वो हमेशा अपने आप को सही मानते हैं। इट इज नॉट गुड, हमेशा हम सही नहीं होते। मैं तो कहती हूँ कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनिए, वो भी अपनी जगह सही होता है। हमेशा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरा गलत हो, पर हमेशा अगर हम ये माने कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, हम बिल्कुल सही हैं, या हम ओवर पॉजिटिव हो जाए कि नहीं हम सही हैं इसलिए हमारी बात माने, और अगर कोई व्यक्ति नहीं मानेगा तो हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, या हम इरिटेट हो जाएंगे, या हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा भी मानते हैं कि हमारा दूसरा व्यक्ति जो है वो हमेशा जो है गलत है, तो ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। डू यू हैव न्यूमरस एक्स, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे पेन्स और जो है हेडअप, और ये सारे के सारे डेवलप हो जाते हैं। और नो डॉक्टर कैन फाइंड अ फिजिकल कॉज, अब उसमें आपको बहुत सारे पेन और बहुत सारी चीज़ों के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार आप सारे एक्सरे करा लेते हो, सारी चीज़ें डॉक्टर को दिखा देते हो, और कोई फिजिकल कॉज आपका नजर नहीं आता। जब आपका कोई फिजिकल कॉज नजर नहीं आता तो आपका क्या होता है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। अभी एक मेरा परिचित है, एडवोकेट है, शी इज एडवोकेट, वो कहने लगी कि मुझे तो रोजाना चक्कर आते हैं, मुझे कभी कभी अपने आप चक्कर आ जाता है, दिमाग घूम जाता है। डॉक्टर के पास गई, फिजिशियन के पास गई, फिजिशियन ने सारा चेकअप कराया उसका पूरा, उसको कुछ नहीं निकला। तब डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके ऊपर फोकस करो, उसको सॉर्ट आउट करो, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब डॉक्टर के कहने पे उसने उस चीज के ऊपर फोकस किया और ध्यान दिया, क्योंकि उसने अपनी सारी बातें डॉक्टर को, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट में गई तो डॉक्टर को उसने शेयर किया कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि हम शेयर ही नहीं करते हैं, हम बात ही नहीं करते हैं, और हम फिजिकल पेन और ये सब चीजें हम फील करने लगते हैं। अब इसमें क्रूशियल पॉइंट सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रीनेटल पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड में स्ट्रेसफुल जो पीरियड होता है उसमें कुछ वुमेन के लिए जो है उसमें मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। और फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, जब बच्चे का पहला साल के 5 साल होते हैं, तो उसमें रूट्स ऑफ मेंटल हेल्थ आर इन अर्ली चाइल्डहुड, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड में भी डेवलप होते हैं बच्चों के। तो फर्स्ट 5 years बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे ब्रोकन होम है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, और उसमें लाइकली टू प्रोड्यूस बिहेवियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, उसमें बच्चे क्या करते हैं, लोनली फील करते हैं कि मैं किसकी तरफ जाऊं, कि मैं किसको फॉलो करूं, वो सारा इतना लोनली फील करते हैं कि वो उसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उनके डिसऑर्डर डेवलप होने लगते हैं। आगे आगे चल के उनको इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, ये सब होने लगती है। इसको
पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, तो उनका रूट में जो है 5 साल के बच्चे तक में हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। अब उनका आगे डेवलप हो रहा है, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, तो अब हम उनको अभी बात कर रहे हैं तो वो बड़े हो जाते हैं तो हम अवेयरनेस कर सकते हैं उसके प्रति। अदरवाइज इसमें पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, अगर वहीं पे इस चीज को कंट्रोल करके बातचीत थोड़ा ध्यान रखा जाए। अगर मान लीजिए सपोज होते हैं डिफरेंसेस होते हैं हस्बैंड वाइफ में, पर अगर हम बच्चे का ध्यान रखें, मैंने कई फैमिली देखी है, कई सारे मेरे परिचित में है, वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि अच्छा पूरे हफ्ते में अपना जो भी डिफरेंसेस है वो नोट कर लें और बाद में संडे को किसी दिन खुल के लड़ेंगे, बच्चे के सामने हम बहुत बढ़िया बढ़िया रहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब 8 दिन आते हैं ना, धीरे 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 वो सारी मिनिमाइज हो जाती है प्रॉब्लम्स। ये भी एक स्ट्रेटजी का तरीका है, ये भी एक तरीका है बैलेंस रखने का। बच्चों का भी मेंटल हेल्थ सिक्योर हुआ और अपने आप भी, क्योंकि एक हफ्ते में धीरे धीरे वो कलेक्ट करते करते हर चीज का रीजन मिल जाता है कि अच्छा ये इस वजह से हुआ, वो छोड़ो अब क्या लड़ना। तो ये भी एक टेक्निक है, बहुत अच्छी है, जो बच्चों के भी और अपने भी मेंटल हेल्थ रखने का तरीका है। स्कूल चाइल्ड, अब स्कूल भी बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन स्कूल अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। जो भी स्कूल में होता है, तो इसीलिए हम अच्छे स्कूल चुनते हैं। अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं होता है कि हम अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, स्कूल बहुत बढ़िया है, ये सब है। उसका ये होता है कि स्कूल जो है, वो बच्चा जो जा रहा है उसके साथ पेरेंट्स को अटैच रहना चाहिए कि स्कूल में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से वो उनको बताता रहे और वो लगातार अपने उनके टीचर से कम्युनिकेट करते रहे। अब एडोलेसेंस में क्या होता है, जो बताया मैंने, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एडोलेसेंट टू मैनहुड। अब एडोलेसेंस से वो मैनहुड में चली जाती है। ऑफन स्ट्रोमी वन एंड फ्रॉट एंड डेंजरस ऑफ मेंटल इलनेस, डेंजरस टू मेंटल हेल्थ, मैनिफेस्ट टू फॉर्म ऑफ मेंटल इल हेल्थ अमंग द यंग। अब यंग लोगों में जो एडोलेसेंट की जो प्रॉब्लम होती है, वो एकदम से स्ट्रोमी, एकदम से इकट्ठी होकर वो क्या करती हैं, वो जब मैनहुड होता है उसके अंदर सारी आ जाती हैं और वो उसके लिए इतनी डेंजरस होती है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। और उसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो मेंटल इल हेल्थ जो है अमंग द यंग में मेंटल हेल्थ इल हेल्थ जो है स्टार्ट हो जाती है। अब यंग में स्टार्ट होने पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो सोसाइटी में आज हो रही है। जैसे कि यंग में होगी, या तो वो एक तरीके से नशे की तरफ चले जाते हैं, ड्रग एडिक्शन में हो जाएंगे, ड्रिंकर हो जाएंगे, ड्रग लेने लगेंगे, स्मोकिंग करने लगेंगे। आपको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम आजकल हमारे यंगस्टर्स में है, यंग जो हमारे मैनहुड हैं उनके अंदर है। और धीरे 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 कैसे वो आई, कैसे पैर फैलाए, कैसे वो बढ़ गई सारे में, ये हमको पता भी नहीं चलता है और सब सारे हमारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब हम कंट्रोल करते, हम कहते हैं हम कैसे इनको कंट्रोल करें। अब उससे क्या होता है, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, और साथ साथ पेरेंट्स की भी डिस्टर्ब होती है, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी पुअर हो जाती है। देखिए सारी फैमिली चौपट हो जाती है और फैमिली के साथ साथ पूरा कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो एंड ओल्ड एज में क्या है, ओल्ड एज के डिफरेंट काइंड के वो हैं, कॉजेज हैं। उसमें ऑर्गेनिक कंडीशंस ऑफ ब्रेन, उसमें बहुत सारी ड्यू टू ओल्ड एज होती है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, लैक ऑफ होम, पुअर स्टेटस एंड इनसिक्योरिटी, ये सब ओल्ड एज पीपल हैं, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। ओल्ड एज पीपल को भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम इतना ज्यादा होता है कि उनकी भी काउंसलिंग का, उनको बताने का, उनको, क्योंकि सारी लाइफ वो अपना काम करे हुए होते हैं और लास्ट में जब बच्चों से या किसी भी तरीके का उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, या कोई ऐसा एलिमेंट कोई ऐसा डेवलप हो जाता है, जैसे बहुत सारी डिजीज हैं वो डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो ड्यू टू स्ट्रेस हुई हो, चाहे वो अपनी बॉडीली हुई हो, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हुई हो, जिसमें आपका इंसोम्निया की प्रॉब्लम मेनली है, आपका डायबिटिक है, आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है बहुत सारी साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। ओल्ड एज पीपल में बहुत सारी इनसिक्योरिटी की वजह से और प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं, ज़्यादातर अल्जाइमर डेवलप हो जाता है इन सब। तो ये सब चीज़ें बहुत मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। हर स्टेप बाय स्टेप इनका कनेक्शन है, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे हम लोग ऐसे वाला कंट्रोल करने का शुरुआत करें। जहाँ है वहाँ से तो करना ही है, लेकिन हमें इनिशियल स्टेज में भी अगर हम उसको कंट्रोल करें और करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब बेसिक इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसको हम बेसिक स्ट्रेटजीज थोड़ा बहुत हम इसको बात कर सकते हैं। जैसे हैविंग ए रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ वंस ओन रिएक्शंस, इमोशंस एंड एबिलिटीज। अब हमें क्या है, रियलिस्टिक अप्रेजल के फॉर्म में अगर हम रियलिटी कॉन्टेक्ट में रहें, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें और जो सच है वो दूसरे का भी स्वीकार करें। हमारी सच्चाई वो तो हर कोई करता है कि हम जानते रीजन ये बात है, लेकिन दूसरे का जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसकी भी रियलिटी को भी हम जानने की कोशिश करें और उसकी रियलिटी को भी हम एक्सेप्ट करें और अपनी एबिलिटी डेवलप करें कि उसकी रियलिटी, उसके इमोशंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे उसके साथ रिएक्शन करें, तो हम मेंटल हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं।
इम्पल्स कंट्रोल, अब इम्पल्स कंट्रोल में क्या है? इम्पल्स कंट्रोल देखिए, बीइंग इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर इम्पल्स बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि हम ओवर कंट्रोल की बात इम्पल्सिव बिहेवियर पे हम किस तरीके से कह रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स है, उन पे हम ओवर कंट्रोल करें। हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन, उन पे हमें कंट्रोल, पॉजिटिव चीजें हैं करनी चाहिए हमको, लोगों को बात करनी चाहिए, जैसे नेगेटिव भी है उस पर भी करनी चाहिए, वो सब हमको करना है। लेकिन हमें कंट्रोल करने की कोशिश उनको करनी चाहिए जो हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर हैं। जैसे एकदम से मान लीजिए हमें किसी के प्रति गुस्सा आया, हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर है, और हमें लगता है कि हम उसको बहुत हार्म पहुंचा दें, तो हमें उसको ओवर कंट्रोल करना आना चाहिए। ये हमारा मेंटल हेल्थ का एक फंक्शन है। कंप्लीट ओवर कंट्रोल जो है उसके ऊपर होना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे इंस्टांस होते हैं, टीवी में तो आजकल बहुत सीरियल ऐसे दिखाए जाते हैं कि बिल्कुल इतना नेगेटिव या बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव भी अगर हम एक्सेस में जाएंगे तो उसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसको दूसरे तरीके से लेता है और उसको भी उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता जो आपका पॉजिटिव मैनर होता है। तो इसलिए जो हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर है, जो हमारे एकदम एक्साइटेड होकर हम करते हैं, चाहे वो बहुत नेगेटिव साइड में करें या पॉजिटिव में, तो हम एक बार ये अंडरस्टैंड जरूर करना चाहिए, इज इट ओके, इज इट ओके और नॉट, क्या ये करना ठीक है कि नहीं, क्या हम इस लेवल तक क्यों करें, क्या हमारा बीच का जो हमें नॉर्मली सब लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं वो नॉर्म्स फॉलो करनी चाहिए इसमें, तो वो चीजों को फॉलो करना चाहिए हमें इसमें, तो उसके अंदर हमको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें सेल्फ एस्टीम। अब इवेल्युएट कंपोनेंट, इसमें इवेल्युएटिव कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, अपने जो सेल्फ एस्टीम है कि हमारा सेल्फ एस्टीम किन किन चीजों से डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्ब हुआ है, उसको भी हमें इवेल्युएट करके अपने सेल्फ एस्टीम को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ कंसेप्ट विच इज द अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ। तो इसमें हमें सेल्फ कंसेप्ट को भी अपना अपने प्रति, उसके प्रति अवेयरनेस रहनी चाहिए, और अपना सेल्फ एस्टीम है उसको, उसकी वजह से फिर हम आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू हम अपना मेंटल हेल्थ को रिगेन कर लेते हैं। पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग विच जनरेट पॉजिटिव इमोशंस। जो पॉजिटिव, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अब देखिए पॉजिटिव थिंकिंग का जब हमारे पास पावर होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हमारे इमोशंस है वो जनरेट करेंगी, और पॉजिटिव इमोशन जनरेट होंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो सिक्योर रहेगा। अब मेंटल हेल्थ का जो है आपका टाइम है अभी या खत्म हो गया? है मैम, है आराम से कंटिन्यू कीजिए आप। ओके ओके ओके। अब मेंटल हेल्थ का देखिए क्या है, अब इसमें 3 टर्म्स की बात होती है, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन एंड मेंटल वेलनेस आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ओके, अब इसमें मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, मेंटल वेलनेस, ये तीनों चीजें कहाँ पे यूज होती हैं? ये तीनों टर्म जो है किसमें होती है? एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल स्टेटस हैज 2 पॉसिबिलिटीज, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है मेंटल हेल्थ में, इधर हेल्थ और इलनेस और डिसऑर्डर, इसके अलावा इसमें तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस विल लीड पीपल टू, अब अगर हम लैक ऑफ मेंटल हेल्थ है हमारी और हाइजीन के प्रति अवेयरनेस नहीं है, तो पीपल किस किस चीज को सफर करते हैं? अगर हमारा मेंटल हेल्थ पुअर है या लैक ऑफ मेंटल हेल्थ है तो क्या होता है? स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है परिवार में, सोसाइटी में, पीयर ग्रुप में, कहीं पे ये वो खराब होती है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। फिर डिप्रेशन में आ जाता है व्यक्ति, डिप्रेशन के साथ क्या होता है? एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी का तो इसमें मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा रोल होता है, जनरलाइज एंजाइटी, तो इसमें डिप्रेशन में आएगा। डिप्रेशन के बाद में नेचुरली एंजाइटी और डिप्रेशन ये सारे नेगेटिव हैं, टेंशन है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है व्यक्ति, हैजल्स हैं, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम नहीं हैंडल कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, एडजस्टमेंट लोगों के साथ में खत्म हो जाता है, हर समय व्यक्ति टेंशन में रहता है, मेंटल हेल्थ जब उसको होती है। अब ये सिम्टम हम लोगों को एक बार चेकआउट करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने को मैनेज करना बहुत जरूरी है, तभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कोई फायदा है जो हम सोच रहे हैं, या जो भी हम स्ट्रेटजी की अगर बात करें और लोगों ने भी की होगी और इसको हम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब फैमिली प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या होगा? फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमारा लैक ऑफ मेंटल हेल्थ जो होगा, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ये सब स्ट्रेस, एडजस्टमेंट, ये सब प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम सब होंगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती है इसके साथ साथ। अब इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर से क्या क्या होगा? डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन के साथ साथ क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, मैनिक डिप्रेशन, जैसे अभी मैं इम्पल्स की बात कर रही थी उसमें। एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर होंगे, सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर और एडिक्शन,
इतने सारे डिसऑर्डर हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने पे हमारे किसी भी व्यक्ति के अंदर आएंगे। इतने सारे डिसऑर्डर लेके तो हम बहुत सारे, ये चेन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब जुड़ते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। अगर हम प्रॉपर टाइम पे ध्यान नहीं दें तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि कब में ये सारे इकट्ठे हो गए और अब हम क्या करें। हम बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं बाद में कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें कोई रास्ता दिखाए भी तो उस पर हम बहुत ज्यादा चलने के लिए विलिंग नहीं होते हैं और ज्यादा पुअर मेंटल हेल्थ में चले जाते हैं। इसलिए इतने सारी चीजों को बचाने के लिए हमें हमारे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए और उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको मिनिमाइज करें। एटलीस्ट कोशिश तो मिनिमाइज करने की करनी चाहिए। अगर हम ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम अपने गोल को भी पा लेंगे और हमें रास्ता मिल जाएगा। बेटर मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, अब ये तो सबके लिए वो है, रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल विद मेंटल हेल्थ। अब ये तो सभी को व्यक्तियों को मेंटल हेल्थ के लिए प्रयास करने चाहिए, अपने स्टिग्मा जो है उनको रिड्यूस करना चाहिए और इसमें डिस्क्रिमिनेट भी करके अगेंस्ट पीपल हमको मेंटल हेल्थ को सिक्योर करने के लिए या उनकी इलनेस को मिनिमाइज करने के लिए इस डायरेक्शन में भी पूरे प्रयास करने चाहिए। अचीव इसमें इक्विटी और मेंटल हेल्थ केयर कंपेरेबल टू अदर हेल्थ केयर, जो भी हम जो है हमारे पास जो मेंटल हेल्थ केयर के हमारे पास सिस्टम है उसको हम अचीव करें कि कैसे कैसे हम अपनी मेंटल जो हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम कैसे हम उसको कोप अप करें, कैसे हम उसको बेटर बनाएं, वो सब हमको देखने चाहिए। और कंपेयर इससे ज़्यादा बेटर होता है कि इससे ज़्यादा बेटर होता है, जिससे बेटर होता है कंबाइंड होके क्यूमुलेटिव फैक्टर भी काम करते हैं और बहुत सारी दूसरी थेरेपी सब मिलके भी काम करती हैं मेंटल हेल्थ को सिक्योर करने में। कोई एक ही थेरेपी नहीं होती इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके, कई सारी इक्लेक्टिक अप्रोच से भी अगर आप कई सारी चीज़ों को मिलाकर और उसके अकॉर्डिंग काम करें तो भी आपको जिसमें आप जिसका इंटरेस्ट है, जिसको अकॉर्डिंग जो कर सके उसको भी कर सकता है। टू एडवांस प्रमोशन, इसमें इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, ये तो आपको करना ही है। लेकिन मेन चीज इसमें क्या है, बिहेवियर विच सस्टेन गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ में देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर किस किस में ज्यादा सस्टेन करता है। जो हमारी गुड मेंटल जो हेल्थ है उसको करने के लिए बिहेवियर के लिए क्या है इसमें, राइट फूड, जिसको हमारे हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं उसमें आचार कहा गया, आहार कहा गया है। आहार, आहार विहार है ना, और इसमें आचरण और इसमें ये सब चीजें मिलके हमारा फिजिकल हेल्थ और साथ साथ मेंटल हेल्थ हमारा सारा इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है या जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, जो थेरेपीज हैं वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। बट अगर हम अपने वेदों में जाएं, अगर हम अपने पुराणों में जाएं, अगर हम वहां से भी देखें तो क्या है, राइट फूड, उसको उन्होंने आहार कहा है। राइट फूड का क्या है मतलब, हमें टाइम पे खाना खाना चाहिए, क्या खाना है ये ध्यान रखना चाहिए। उसमें तो बहुत सारी ऋतुएं भी बताई गई हैं, इसके अकॉर्डिंग खाओगे तो ये चीजें ठीक होंगी, ये होंगी। इतना हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ उसको जितना फॉलो कर सकें उतना हम करें तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। राइट फूड चॉइस तो इतनी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब व्यक्ति मेंटल हेल्थ इलनेस को सफर करता है या पुअर मेंटल हेल्थ होती है या लैक ऑफ मेंटल हेल्थ होती है तो उसमें सबसे पहले वो खाने पे असर होगा, वो बहुत ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे उसमें, या बहुत ज़्यादा खाएगा या बिल्कुल खाना छोड़ देगा, आपको पता है। तो इसलिए हम जो है इसमें आहार पे हमको ध्यान देना चाहिए, वो हमें प्रॉपरली टाइम पे और गुड हेल्दी आहार, और हो सके तो हमें थोड़ा ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी आहार हमें लेना चाहिए, तो उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ सस्टेन रहती है। और राइट रूटीन, रूटीन का क्या मतलब है कि हमारा हमको कब खाना खाना है, खाना हमें टाइम पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाए ऐसा नहीं है। वो भी एक तरीके का ऑब्सेशन है कि हम कहीं हमारा खाने का टाइम तो 8 बजे है, अब 8:05 हो गया या 8 बजने में 5 मिनट रह गया या 10 मिनट रह गया, हम उसको बोले हम उसको डिस्टर्ब हो जाए कि हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज ये ऑब्सेशन है एक तरीके का माइंड में। इसका राइट रूटीन का मतलब ये है कि मोर और लेस आप जो है एक ही रूटीन सेट करें कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने, क्योंकि बॉडी साइकिल, आपको बॉडी क्लॉक सेट करना है इसमें। अगर आपने बॉडी क्लॉक आपने सेट कर दिया तो उसके लिए क्या होगा कि आपको उतने ही बजे खाना, सोना, वो चीज़ें अपने आप ही रूटीन में आके आपको अपने आप ही उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स बाद में नहीं करने पड़ेंगे, वो हैबिट में आ जाता है, बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है, क्लॉक सेट हो जाती है इसमें। अब राइट रिक्रिएशन, तो इसमें क्या है, विहार। अब कहते हैं ना विहार, हमें थोड़ा मूव करना, घूमना, और हमें खाना खा के इवनिंग वॉक कर लिया, सुबह को थोड़ा टहल लिया, घूम लिया, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, मॉर्निंग वॉक में लोगों से मिलना, इवनिंग वॉक में जाना,
या जैसे यंग बच्चे हैं वो फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होनी बहुत जरूरी है। क्यों एनर्जी उनकी ब्लॉक हो गई, जिस मेंटल उनका हेल्थ पुअर हो गया तो उनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो ब्लॉक हो गई। उसको चैनलाइज करने का ये भी एक तरीका है कि सुबह को वो मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, सुबह दौड़ने जाएं, उसमें फील्ड में जाएं, तो ये सबसे उनका मेंटल हेल्थ धीरे धीरे वो रीगेन करने लगते हैं। और राइट थिंकिंग तो विचार तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक हम विचार और राइट थिंकिंग को नहीं अपनाएंगे तब तक तो हम ऊपर के सारे काम भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपनी थिंकिंग को ही पॉजिटिव देना होता है। थिंकिंग को अगर हम पॉजिटिव नहीं देंगे तो हम ऊपर के जो भी काम है थिंकिंग, फीलिंग और आपका हमारा जो बिहेवियर है और जो भी हम कुछ काम एक्ट करते हैं वो सब हम नहीं कर सकते हैं। और उसमें कई बार लोग क्या कहते हैं ना, डिफेंस मैकेनिज्म लेते हैं, ड्यू टू लगाते हैं, ड्यू टू दैट रीजन वी आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क, ड्यू टू दैट रीजन हम इसको नहीं कर पाए। तो इसमें क्या है, वेज पीपल डील विद स्ट्रेसेस इन देयर लाइफ। अब ड्यू टू लगा के लोग अपने जो है इन वेज के थ्रू क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू अपना जो स्ट्रेसफुल जो आपकी जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई ड्यू टू या बिकॉज ऑफ दैट लगा देते हैं। यूज टू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए और उसमें काउंटर बैलेंस फीलिंग और एक्शन, उसमें हमको जो भी हमें फीलिंग, जो भी हमें जिस भी तरीके से फीलिंग से सोचना है, हमें थिंकिंग करनी है और हमें एक्शन करने हैं, वो सबको हमें करना चाहिए। तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब हम उससे 1-to-1 होंगे। और डू नॉट यूजुअली गेट रीड of the problem and are often negative or not a very effective way to deal with the stress. स्ट्रेस कई बार ऐसा होता है ना कि यूजुअली गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम, कई बार हम प्रॉब्लम के ऊपर बिल्कुल कि ये तो हमें सॉल्व करनी है, ये तो हमें हर हालत में करनी है, एंड ऑफन निगेटिव, और इसमें हम कई बार क्या होता है निगेटिव डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। हमें प्रॉब्लम कई बार हमें छोड़ भी देना चाहिए, कई प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें इफेक्टिव वे टू डील विद स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को डील करने का निगेटिव तो है ही नहीं। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निगेटिव सोचें, निगेटिव सोचने के और काम करने के अकॉर्डिंग हम उसमें जाएं, तो उससे बेटर है कि हम कभी कभी किसी प्रॉब्लम को पॉज देना चाहिए, थोड़ा टाइम दे दें, सोचे, उसके बाद कुछ उसमें रास्ते और निकल आते हैं। डायरेक्ट अटैक करना है इसमें नेचुरली वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वर्क करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम किस तरीके की है, परसिस्टेंट है, सॉल्वेबल है, और वो बहुत ज्यादा हमारा निगेटिव थिंकिंग हमारा लाइफ डिस्टर्ब नहीं करेगी। प्रॉब्लम को, नेचर ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी हमको काम करना चाहिए। डेली रूटीन की प्रॉब्लम को तो एटलीस्ट हमको एबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और गोल मस्ट बी रियलिस्टिक, अब हमारा जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एबिलिटी है, जो हम कर सकते हैं, उसको पहले सोचें और हम उसके अकॉर्डिंग अपना गोल बनाएं, और अचीवमेंट के लिए हम एस्पिरेशन और अचीवमेंट लेवल में भी बहुत दूरी, बहुत डिफरेंस जितना होगा हमारा उतना फिर हम नहीं अचीव कर पाएंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और इसमें डे ड्रीमिंग, कई बार क्या होता है मेंटल हेल्थ पुअर होने का हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एबिलिटी हमारे पास है, हम उसको नहीं कर पाए, तो उसमें क्या करेंगे, एस्केपिंग फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, हम अनप्लीजेंट सिचुएशन से एस्केपिंग करेंगे और इमेजिनेशन में लग जाएंगे, डे ड्रीमिंग में लग जाएंगे और फैंटेसी में वर्ल्ड डेवलप कर लेंगे, उसमें रहने लगेंगे। बस सिर्फ डे ड्रीमिंग, आप जानते हो सब लोग, दिन में हम लोग कहते हैं दिन में मुंगेरी लाल के सपने देखना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई तो हम अनप्लीजेंट से एस्केप कर रहे हैं, तो हम दिन में वो सपने देखते रहते हैं, उसको प्लीजेंटली सपने देख, उससे प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होती, उससे तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि डे बाय डे हमारा खराब होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी किसी व्यक्ति की जो भी सोचना है उससे खत्म हो जाती है और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अब एक डिनाइल है, फेलियर टू एक्सेप्ट रियलिटी, हम रियलिटी, नेचुरली रियलिटी को फेस करें, रियलिटी एक्सेप्ट अगर हम नहीं करेंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम होगी। और ट्रांसफर टू नेगेटिव इमोशन फ्रॉम पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और थिंग, अब हम अपने जो निगेटिव, कई बार क्या होता है हम निगेटिव हैं, हम अग्रेसिव हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब एक गुस्सा हमको आ रहा है, पेरेंट्स को आता है, वो जाके बच्चों पे निकाल देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो भी गलत है, हम ट्रांसफर करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन में ब्लेमिंग की टेंडेंसी होती है ज्यादातर, जिनकी मेंटल हेल्थ पुअर होती है, या पुअर होने के कारण भी यही होते हैं कि प्रोजेक्शन करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ब्लेम अदर्स पीपल और थिंग्स, अपनी फेलियरिटी का जो हम ब्लेम है वो दूसरों को देते हैं। रिग्रेशन है, ये आपको सबको पता है, यूजिंग चाइल्ड लाइक, हम चाइल्ड लाइक बिहेवियर करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जब हमारा निगेटिव इमोशन, बाल खींचना जैसे दिखा रहे हैं, क्राइम, नेम कॉलिंग, थ्रोइंग थिंग्स, ऐसे करने लगते हैं।
और इसी तरीके से सेल्फ हार्म है, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं बहुत सारे बच्चे, एक्टिंग आउट वो उसको करने के लिए अपने को हार्म पहुंचाएंगे, अपने को कोई चीज मारेंगे, कुछ डिस्टर्ब कर लेंगे, अपना सिर देके दीवार में मारेंगे, कुछ करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों का, बड़ों का भी देखा है, कई बार वो डिस्टर्ब होंगे तो अपने को सेल्फ हार्म, इवन ये सेल्फ हार्म की टेंडेंसी सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के, तो वो भी सेल्फ हार्म, फिर वो उस लेवल तक ना पहुंचे, इसके लिए हमको ये सब चीजें सिक्योर करनी बहुत बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। और फॉल्स एक्सक्यूजेस डेवलप कर लेते हैं हम, किसी भी चीज के फॉल्स एक्सक्यूजेस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कोई बच्चा चोरी कर ले, कहीं उसके पास तो बहुत सारा था तो मैंने एक ले लिया तो क्या हो गया, तो ये भी फॉल्स एक्सक्यूजेस हैं। कंपनसेशन आपको पता ही है, पीपल ओवरअचीव इन वन एरिया टू कंपनसेट फॉर फेल्योर इन अदर्स, ये भी ये अच्छा है। अगर आप एक चीज में जो है कंपनसेशन कर रहे हैं, ओवर अचीवमेंट आपका हो रहा है, तो उससे भी आपका कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ ये सिक्योर होगा, आपको लगेगा आपने कुछ अचीव किया, आपको लगेगा आपकी कुछ आइडेंटिटी है, कुछ बात है, तो उसमें भी कंपनसेशन भी एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है ये। बिकमिंग गुड एट अ सपोर्ट, और इसमें थैंक यू, आगे आपको जो हो बताया। मैम थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। आई थिंक इतनी आराम से सारी चीजें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे डील कर सकते हैं, कैसे बेटर वे में वो घर बैठे बैठे अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड डेफिनेटली दिस इज वन प्रेजेंटेशन जो सभी पूरी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। नाउ वी आर ओपनिंग हाउस फॉर द डिस्कशन। इज देयर एनी क्वेश्चन, any queries from the audience? You can ask directly. ये बहुत रिक्वायर्ड था कम्युनिटी के लिए स्पेशली, कि उनको इजी लैंग्वेज में कैसे समझ में आ सकता है। और श्वेता कोई और क्वेरी हो, कुछ हो, कुछ मैम कोई क्वेरीज नहीं, बिकॉज डेफिनेटली सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से कवर हुए हैं, और ये सारे पॉइंट्स यूजुअली लोग हमसे पूछते रहते थे हमेशा, बट आज मुझे लगता है उनकी सारी क्वेरी सेटिस्फाइड है। इस वे में जनरली मतलब यही है कि लोगों को बहुत ही आराम से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी था, जो आज पूरा उनका एम हो गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। आई नो घर पे सब लोग बीमार भी थे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग यू। बाद में आपने हमारे लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। नहीं, पर तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो श्वेता, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से, तुम सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, मेंटल हेल्थ हमने तो सिर्फ बताया है, बाकी मेन काम तो तुम कर रहे हो। नहीं मैम, बस आपका आशीर्वाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब शिक्षक ही होते हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आप ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए, गाइडेंस देते रहिए एंड थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू, नमस्ते मैम। ओके, नमस्कार।